Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to understand the image formation by the plane mirror. So basically हम लोग सुबह सुबह जो अपनी शक्ल देखते हैं शीशे में, कैसा इमेज आपको नज़र आता है, क्या वो बड़ा होता है, क्या वो छोटा होता है, और डिस्टेंस सब कुछ लाइक क्या वो क्लैरिटी दिखाता है. सो बेसिकली वी आर डीलिंग विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, द इन्वर्जन्स एंड ऑल, राइट. ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज द मेन टॉपिक फॉर टुडे दिस लेक्चर. ऑलराइट, सो यू ऑल नो दैट वी आर स्टडिंग लाइट एंड दैट इज एन important topic for the school examination as well as the Olympiads. Either you talk about the NTSC or the NSCJS. That's why this topic is important and definitely you should study it. Alright, if you want DPP and study material, you can access them from our Telegram channel. You can write the code TTB010 in the search box of the Telegram app. Then you can join the channel TTB10, right? So that's the channel for your class 10, right? So you can join that. You can access all the TPPs and study material, and definitely you will be getting the notifications of videos also. Now see, this is the team which is helping you a lot in your journey, in your preparation journey especially. So basically we are providing the lectures जो कि आपके लिए बहुत beneficial होंगे. These are lectures free for everyone, anybody can watch, and that's why I am recommending and I am emphasizing that you share it with all your friends and relatives and whatever people you know, right? That would be so much best for other people also, because these are the lectures by which you can crack any examination if you are serious about studying. So basically pay attention to it, study from these lectures, and then you will definitely gonna crack the examination. That is our main aim, and that's why we are working towards this for you all. In that scenario, in accordance to that also, we have prepared some packages for you all. So basically these lectures are free for everyone, but if you are interested in furthermore includement and you can say engagement, then you can definitely join our packages. That is the full one and the test series. For that you have to go on the website www.talkingtextbooks.in. If you go on that website, you will be getting two type of packages, the full one and the test series. Basically full one, in full one you will be getting all the things like lectures are free, but you will be getting the comprehensive study material, the homework submission feature, alright, and you will be getting a quizzes, bi-weekly quizzes, and then the periodic test papers. These are the so important things, because definite सी बात है, आप जब तक होमवर्क नहीं करेंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी डाउट्स की, राइट? किस तरीके के डाउट अपर जो किसी भी लेवल में होते हैं, इधर इन द डीप लेवल और द अपर लेवल, बट में बेसिकली आपको वहाँ पर डाउट लेकर आने होते हैं. कोई भी पढ़कर रटकर समझकर जो है सॉल्व कर सकता है, राइट? लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो देयर आर डाउट्स, ऑलवेज देयर विल बी डाउट्स. सो बेसिकली फॉर दैट वी हैव प्रिपेयर्ड दिस, एंड ऑल्सो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द टेस्टिंग फीचर. सो बेसिकली आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो ठीक है, बट हाउ डू यू नो कि आपको वो रिमेंबर हो चुका है, बट और या फिर आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, या फिर जो एग्जामिनेशन में प्रीवियसली ईयर पेपर के क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं. ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी टेस्टिंग फीचर से. बाय वीकली क्विजेज यू विल बी गेटिंग टेस्टेड ट्वाइस अ वीक. ऑल्सो द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये जो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली गिविंग यू द पैटर्न ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन. What type of examination you are going to face in the final examination. That is the main thing also, because you should know the demon, right, before you slay. That's why you should know the paper pattern, the negative marking, the number of questions you are going to fight in an unlimited amount of time. ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर सके विद प्रॉपर नॉलेज, विद प्रॉपर स्पीड, एक्यूरेसी. दैट इज़ द मोस्ट important things whenever you are thinking about cracking any examination, and that's what we have provided you here for in that accordance, right? And if you are not interested in buying them, then you can definitely join the test series. You can test yourself, even if you have studied or not, you can definitely test it, right? You will be getting the periodic test papers, bi-weekly quizzes, and the live classes and the video classes. These are the two things which we have prepared for you all if you are really serious about your studies and cracking those examinations. But if you are a smart student, you can definitely study from these free video lectures, alright, and spread it to everyone so that your friends can also study from these and benefit from these.
Also, if you are interested in buying them, you can definitely write my code CYLive. If you write this code, you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. And if you have any query regarding these packages, how they are going to benefit in your preparation journey and how you should even buy them, so you can definitely call us on the number 919549041111. That is so cool if you are really interested in them. And definitely you should know about them. You should not have any doubt regarding anything, right? Or not even the topic and not about these things. All right, so you should definitely call us and that would be good, right? Now let's promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. Look, revision बहुत ज़रूरी है, right? क्योंकि अभी आप जब NTSC फाइट आउट करोगे तो आपको 9th के लिए भी चाहिए होगा, right? 9th के टॉपिक्स भी इंक्लूडेड हैं along with 10th, तो आपको 10th भी पढ़ना होगा, आपको 9th भी पढ़ना होगा. दैट मीन्स इस एक साल के अंदर आप 2 साल का कंटेंट पढ़ने वाले हो. अगर आपने 9th क्लास पहले से बहुत अच्छे से पढ़ ली, उसके टॉपिक्स बहुत क्लियर हैं, तो इट वुड बी सो गुड, राइट? लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि 9th क्लास में इतने सीरियस नहीं होते हैं, फिर 10th क्लास में अचानक से उनको सीरियसनेस आती है कि ओ माय गॉड हमें करना है, NTSC फाइट आउट करना है, बोर्ड देने हैं एंड ऑल, राइट? तो यहाँ पर भी आके काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इफ़ दे रिवाइज. डेफिनेट सी बात है, रिविजन इज़ द की. अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो कंसेप्ट्स आपके दिमाग में नहीं बैठने वाले हैं और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, खुद को टेस्ट कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो स्लिप आउट हो जाएंगे, राइट? तो आपको मेन फीचर क्या है? रिवीजन. आप स्टडी करो, आगे भी बढ़ो, जानो आगे के टॉपिक्स को, बट पुराने टॉपिक्स को भूलो मत. दैट इज़ द मेन कंसेप्ट. हमें सब इकट्ठा करना है, ऐसा नहीं करना है कि आगे से हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं एंड वी आर जस्ट फॉरगेटिंग द प्रीवियस वन. दैट शुडंट बी हैपनिंग, राइट? So let's get started. Let's start a topic and definitely we will be revising previous one also. ठीक है, वो तो आपको रिवाइज करना ही करना है, not me, only you, right? You should revise and you should give the test, right? Bi-weekly quizzes को attempt करो और साथ ही साथ periodic test papers को भी attempt करो. You will be getting to know such type of questions कि भाई इस topic में से किस तरीके के questions आ सकते हैं या फिर appear हो चुके हैं. Alright, so basically let's get started. आज का जो lecture है that is image formation by plane mirror. तो we will be talking about the plane mirror, right? Plane mirror तो हम लोग बहुत familiar हैं क्योंकि plane mirror तो हमारे घर में, सभी के घर में almost available रहता है, right? So we are totally familiar with that thing. Actually we can say that. So what we will be studying today, the subtopics only. Main topic तो हमें पता चल गया image formation by plane mirror, but the subtopics that what we are going to study is images. What are these images? Actually उनमें होता क्या है, like क्या होता है, that is what we are going to study. Type of images, कितने type की images होती है. Image formation by plane mirror, किस तरीके से plane mirror image form करता है. Characteristics of image, कैसी image मिलती है, मतलब what are the things that is common in every image. Alright, lateral inversion, what's that? We will be talking about that. That could be new for you, but you are totally familiar with that because if you have ever seen your image in the plane mirror, you know the lateral inversion. Alright, then we will be talking about when there are number of mirrors, right, joining together. तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस आपको मिलने वाली है. सो बेसिकली ऐसी कई जगह, जैसे कहीं कोई सर्कस जो जगह होता है, राइट, तो वहाँ पर एक मिरर रूम होता है. उस मिरर रूम में चारों तरफ मिरर्स होते हैं, राइट. दे आर ओनली द प्लेन मिरर्स, राइट, बट चारों तरफ आपको इतना इमेजेस नज़र आती है. दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी कि आप कब दो मिरर्स को ज्वाइन करके कितने एंगल पे आप कितने इमेजेस को फाइंड आउट कर सकते हो. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इटसेल्फ. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एंड दैट इज इमेज. सो बेसिकली व्हाट इज दैट इमेज. सो देखो, एक इमेज हम इसे ऑप्टिकल इमेज भी बोल सकते हैं. ऑलराइट, ऑप्टिकल इमेज का मतलब बनी है जो लाइट से, लाइट की रेज. अब देखो, ये जो इमेज है जो हम मॉर्निंग में देखते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर में, ये इमेज एक्चुअली में एक इल्यूजन है. इल्यूजन कैसे? आपको ऐसा लगता है कि वो मिरर के बैक साइड में, मीन्स योर रूम इज क्रिएटेड इनसाइड दैट मिरर, राइट, कि मतलब आपको सब कुछ दिखाई देगा. आप दिखाई दोगे, आपके पीछे का बैकग्राउंड दिखाई देगा, एवरीथिंग अराउंड यू इनसाइड दैट मिरर,
राइट वो सिर्फ एक 2D समथिंग, कोई 2 डायमेंशनल थिंग होती है और उसके अंदर हमें पूरा सब कुछ दिखाई दे जाता है, राइट जो चीज़ हमें एक्चुअली दिखाई दे जाती है दैट इज इल्यूजन। कैसे इल्यूजन है ये वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वहाँ पर लाइट रेज जो है ऐसा लगता है आपको कि लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम दैट मिरर, राइट आपको ऐसा लगता है कि लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम दैट मिरर, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। लाइट रेज आर एक्चुअली फॉलिंग ऑन दैट मिरर एंड दे आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑलराइट दैट इज द मेन कंसेप्ट। तो कोई ऑप्टिकल इमेज जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो आप कैसे देख पाते हैं? आइदर वहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली में जाके मिल रही हैं या फिर आपको वहाँ से आती हुई नजर आ रही है, मीन्स यू सीम लाइक light is coming from that point but actually it is not happening, right? तो यहाँ पर दो तरीके से आपको images मिलती है एंड इन्हीं दो तरीकों पे बेस्ड दो टाइप्स ऑफ images होती हैं, ठीक है। तो देखो ऑप्टिकल इमेज इज अ पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज एक्चुअली और अपीयर टू डाइवर्ज। दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारी लाइट रेज आकर या तो मिल जाएं या फिर ऐसा पॉइंट जहां से ऐसा लगे कि इसी से सारी लाइट रेज बाहर आ रही हैं। ऑलराइट दैट इज एक्चुअली द प्लेस वेयर द इमेज इज गोइंग टू बी। ऑलराइट तो यहाँ पर हमें जो इमेज मिलती है वो हमें 2 टाइप्स की मिलती है अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। या तो लाइट रेज उस जगह पे जाके मिल जाती हैं, ऑलराइट, या फिर लाइट रेज वहां से आती हुई नजर आती है। और यही केस होता है किसके साथ? प्लेन मिरर के साथ हमें आती हुई नजर आती है। ऑलराइट क्योंकि आपको एज इट इज दिखाई देता है, आप जो हैं एज इट इज आपको वहां पे एक पूरा का पूरा सेम टू सेम आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, राइट। दैट इज व्हाट नेसेसरी। आपको ऐसा लगता है वहां कोई है बट वहां एक्चुअली होता नहीं है। लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम दैट रीजन, दैट्स वाई यू आर गोइंग टू गेट दैट थिंग। हमें क्या पता चला है? हमें तो ये पता चला है ना कि जहाँ से भी लाइट रेज हमारी आईज में जाती हैं, राइट, हमें वो चीज़ दिखाई दे जाती है, यही हमको पता चला है। जहाँ कहीं से भी लाइट रेज आपकी आंखों में जाएंगी वो चीज़ हमको दिखाई देगी। अब आपकी जो मिरर है उस मिरर से भी लाइट रेज टकराकर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर गोइंग इनटू योर आईज एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी योरसेल्फ इनसाइड दैट मिरर। ऑलराइट तो मिरर के अंदर जो भी दिखता है वो ऐसा लगता है कि वहां से लाइट आ रही है एंड व्हेन दैट लाइट फॉल्स इनटू योर आईज यू आर एबल टू सी योर इमेज। Alright, that is the main concept behind the image. Now see, the image of an extended object is an assembly of image points corresponding to various points on the object. So basically, अगर आप हैं तो definitely आप एक point तो नहीं है, right? कोई भी चीज़ जो कि let's say pen एक point नहीं है, right? But it is a body made up of all the points. So मतलब अगर हम हर एक point का अलग अलग image create करें, right, then we can get the image of the whole pen, right? एक point का image would be different, है ना, वो सिर्फ एक point होगा, but जब हम पूरे body की बात कर रहे हैं तो we call that body extended object, ठीक है। क्या बोलते हैं? extended object means it is like having some dimensions, right? कुछ length, कुछ breadth, कुछ height, कुछ weight होना हो चाहिए उसका, राइट, तब हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इट कैन बी योर बुक, योर कॉपी, योर पेन, समथिंग विच इज लिटिल बिट बिग, ठीक है, इट्स नॉट पॉइंट, वो ऑब्जेक्ट होती है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो जब उसको हम उसका इमेज हम मिरर में देखते हैं तो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है? उस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट की इमेज हमें वहाँ दिख रही होती है। सो बेसिकली इमेज जो है वो बनती तो पॉइंट बाय पॉइंट है, बट इट इज शोइंग यू एज अ कंस्ट्रक्शन और दी यू कैन से द होल कंसेप्ट कि भाई तुम्हें सब कुछ जॉइन दिखाई दे रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है भाई? कोई भी बड़ी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं सो वी गेट दैट इमेज एज इट इज, बट एक्चुअली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, राइट। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना रिफ्लेक्शन वहां पर होता है एंड दैट कंबाइंस दैट एज द ऑब्जेक्ट्स इमेज। Alright, that is the main thing. Now let's me tell you about the 2 type of images जो कि मैंने आपको बताया है, आती हुई लगती हैं and converge होती हैं। Let me tell you the difference between them. So देखो, first one जो हम देखते हैं रियल इमेज एंड द सेकेंड वन जो हम देखते हैं वर्चुअल इमेज। मैं सबसे पहले आपको वर्चुअल इमेज से रूबरू कराती हूँ क्योंकि वो चीज़ आप पहले से जानते हैं। सो आप जब मिरर में अपना इमेज देखते हैं तो क्या आप उस इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हैं? जैसे कि कोई पेपर अगर हम रख दें तो क्या वो इमेज उस पर आ जाएगी?
नॉट एट ऑल। क्या वो आपको दिखाई देगी? नॉट एट ऑल। एक्चुअली में क्या होता है, अगर आप मिरर के सामने हैं तो वो वहाँ है, और अगर वो हट जाती है, ठीक है, तो वो वहाँ नहीं है। अगर आप मिरर के सामने से हट जाएंगे तो किसी और चीज़ का ऑब्जेक्ट इमेज दिखेगा, राइट। तो ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू कैन नॉट टच दैट थिंग। वो आप एक्चुअली में वो एक वर्चुअल थिंग है विच इज़ नॉट रियल, ठीक है। वो एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्चुअली में नहीं है। दिस इज जस्ट यू कैन से इल्यूजन, डेफिनेटली, राइट। तो बेसिकली वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो कि किसी स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती, ऑलराइट। आप उसको टच नहीं कर सकते, वो असली नहीं होती हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक नकली इमेज होती है आपकी, सिंपली that is the main thing. If the rays of light don't converge actually but appear to diverge from a point, then the image formed is called the virtual image. It cannot be taken on screen. So basically ये तो पहले स्क्रीन पे नहीं ले जा सकती, और वहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली में मिलती नहीं है, बट ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से जो है लाइट रेज आ रही हैं। इफ़ यू आर एबल टू सी एनीथिंग, मैं वापस से आपको बताना चाहूँगी, इफ़ यू आर एबल टू सी एनीथिंग दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट से आपकी आंखों में लाइट जा रही है। अगर आप अपनी इमेज देख पा रहे हैं तो आपकी इमेज में से जो लाइट रेज आ रही हैं वो आपकी आंखों में आ रही हैं, राइट। इसका मतलब आपके सामने जो भी इंसान खड़ा है, जो कि आपका खुद का इमेज है, वो जो पर्सन है, उस पर्सन के हर एक बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ से सारी लाइट रेज आपकी आंखों में जा रही है। सो यू आर गेटिंग अ फील कि भाई लाइट रे वहाँ से आ रही है बिकॉज यू आर एबल टू सी दैट इमेज, बट एक्चुअली में लाइट रेज आती हुई दिखती हैं, आती नहीं है वहाँ से, एक्चुअली में वहाँ से नहीं आती है। डेफिनेट सी बात है, हमें पता है मिरर के पीछे कुछ नहीं है, राइट। तो मिरर के पीछे से नहीं आती हैं, वो कहाँ से आती हैं? लाइट रेज हमसे पहले जाएंगी, टकराएंगी मिरर पे, एंड देन दे विल रिफ्लेक्ट बैक, एंड दैट ऑब्जेक्ट, दैट इल्यूजन, दैट पॉइंट जहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, जहाँ पे वो इंसिडेंट हो रही हैं, वहाँ से हमें फिर दिखाई देती हैं। सो बेसिकली दे आर अपीयर टू कम फ्रॉम दैट मिरर, ठीक है, इनसाइड दैट मिरर, ऐसा लगता है हमें, एंड दे गेट डाइवर्जेड। जो भी लाइट रेज जो कि मिरर में से आ रही हैं, ऑलराइट, इफ यू आर सीमिंग लाइट की भाई कोई भी लाइट रे मिरर से टकराकर बाहर की तरफ आ रही हैं, डेफिनेट सी बात है, ऑलराइट। तो वो टकराने के बाद जब आपकी आंखों में जाएंगी, दे विल नेवर एवर एवर कन्वर्ज एट अ पॉइंट, ठीक है, वो सारी की सारी फैल जाएंगी। वेनेवर लाइट रेज जो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मिरर के अंदर से आ रही हैं, वो जो लाइट रेज होती हैं, दे नेवर मीट आउटसाइड द मिरर, नेवर नेवर एवर। I will be telling you how the image is formed behind that, alright, I will be talking about this. Now let's just come to the point, the real image, ठीक है। रियल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जो कि असली होती है, रियल से पता चलता है असली है, दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग आउटसाइड द मिरर, नॉट इनसाइड द मिरर, ऑलराइट। तो आपको वो बाहर दिखाई देगी, एक्चुअली में इमेज जो है वो बाहर दिखाई देगी, एंड आप उसको किसी स्क्रीन पे भी ऑब्टेन कर सकते हो। मतलब जिस जगह पे इमेज बन रही है, अगर आप वहाँ एक पेपर रख दो, यू विल बी गेटिंग दैट इमेज ऑन दैट पेपर, और दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट दैट इमेज ऑन द स्क्रीन, राइट। दैट इज द मेन थिंग, दैट रियल इमेज कहाँ मिलती है? मिरर से बाहर बनती है, ऑब्वियसली, एंड क्योंकि वो रियल होती है, यू कैन टेक इट ऑन अ पेपर, ठीक है, आप किसी इमेज किसी स्क्रीन पर उसकी इमेज ले सकते हो, राइट। और सबसे बढ़िया एग्जांपल है सन की इमेज, जो हम बचपन में काम करते थे। रिमेंबर, आपने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब कनकेव मिरर को हमने लिया है, दैन व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, राइट। वहाँ पर क्या हो रहा है, सारी की सारी जो लाइट रेज हैं वो सारी एक जगह पे इकट्ठी होकर पेपर को जला देती थी, राइट। तो वो एक्चुअली में जो पेपर को जलाने का काम है वो फोकस का काम है, दैट मीन्स लाइट रेज आर मीटिंग एट दैट पॉइंट, दे आर गेटिंग कन्वर्ज एट दैट पॉइंट, दैट इज एक्चुअली द इमेज ऑफ द सन, राइट। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो इमेज मिरर के बाहर बनती है, दैट कैन बी टेकन एज द रियल वन। वहाँ पर जो जहाँ पर इमेज बन रही है वहाँ पे सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज हो जाती हैं, ऑलराइट। कन्वर्ज का मतलब सारी उस जगह पे मिल जाती हैं, ऑलराइट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द वर्चुअल। वर्चुअल मतलब वर्चुअल मीन्स वी कैन नॉट टच दैट, राइट। रियल इज आउटसाइड द मिरर एंड इट कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, राइट। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल एंड द रियल वन, ऑलराइट। नोट देम डाउन, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड।
चलो अभी हम देखते हैं इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस, ठीक है। सो यहाँ पे 3 डिफरेंसेस दिए गए हैं। देखो, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखो, फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब आउटसाइड द मिरर, राइट। तो सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रंट ऑफ द मिरर मिल रही हैं, यू विल बी गेटिंग एन इमेज देयर एंड यू कैन टेक दैट ऑन स्क्रीन, राइट। तो दैट वुड बी द रियल इमेज। अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो ऐसा जो है यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। Virtual image is formed when 2 or more rays appear to be coming from a point behind the mirror. ऐसा लगता है कि एक पॉइंट से behind the mirror, ठीक है, एक पॉइंट से लाइट रेज बाहर आ रही हैं, ठीक है, यू आर गेटिंग लाइट रेज फ्रॉम दैट मिरर, राइट। दैट इज व्हाट इज दैट द वर्चुअल इमेज। पॉइंट देखो क्या हो रहा है, सारी की सारी लाइट रेज मिरर के बाहर आके मिल रही हैं तो रियल, और लाइट रेज अगर मिरर के पीछे से आती हुई लग रही है मतलब दे आर मीटिंग बिहाइंड द मिरर, राइट, एंड दे आर द इमेजिनरी वन ऑल्सो। सो ऐसा कोई लाइट रे जो कि ऐसा पॉइंट पीछे से बाहर आ रही है, मिरर के अंदर से बाहर आती हुई नजर आ रही है, दैट मीन्स दोज आर नोन एज द वर्चुअल इमेज। ऑलराइट, तो दैट मीन्स दे अपीयर बट दे डू नॉट कम फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड आप देखो, अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, राइट। सो रियल असली वाली होती है तो हम उसको स्क्रीन पे ले सकते हैं, राइट, लेकिन उसको हम नहीं ले सकते वर्चुअल इमेज को। थर्ड देखो, रियल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। एक और प्रूफ कि हम लोग जो सुबह में अपना शक्ल देखते हैं दैट इज द रियल, दैट इज द वर्चुअल इमेज, नॉट रियल, दैट इज द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का क्या एक मेन यू कैन से आइडेंटिफिकेशन होता है, आप कैसे पहचानोगे कि वर्चुअल है रियल, तो आप उसको देख सकते हो अगर वो सीधी खड़ी मिल रही है आपको, लाइक सिर ऊपर पाम नीचे, जस्ट लाइक अस, अगर ऐसा पॉसिबल है और ऐसा इमेज अगर आपको नजर आता है दैट मीन दैट इज द वर्चुअल इमेज। लेकिन आप सीधे खड़े हो लेकिन आपकी इमेज सिर नीचे और पाम ऊपर नजर आता है, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज द रियल वन। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, ठीक है। एक और आपको एक फैक्टर मिल गया जिससे आप पहचान सकते हो कि रियल है या वर्चुअल। तो रियल ऑब्जेक्ट ऐसी रियल इमेजेस ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि इन्वर्टेड होती हैं, सिर नीचे पांव ऊपर, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि सिर ऊपर और पांव नीचे, बिल्कुल एज इट इज जस्ट लाइक वी ह्यूमंस आर। Alright, so these are the differences between the real image and the virtual one. Now let's move forward and see the image formation. तो देखो यहाँ पर हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं, लेकिन एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का अगर हम देखना चाहें, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब इट इज़ लाइक कि पूरी बॉडी, ऑलराइट, कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा होल स्ट्रक्चर जिसके कुछ डायमेंशंस और लेंथ ब्रेथ कुछ हाइट ऐसा हो, ठीक है। तो वो अगर ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, इन दैट केस आपको क्या करना है, हम उसका जो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे वो हम देखेंगे ऑन द लेटर बेसिस, बट फर्स्ट वी कैन सी द इमेज ऑफ जस्ट अ पॉइंट। कैसे एक पॉइंट का इमेज आपको मिलता है, अगर आपको एक पॉइंट का इमेज किस तरीके से मिलता है प्लेन मिरर में, अगर ये समझ में आ जाता है तो फिर आप पूरे एक्सटेंडेड बॉडी का भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, फोकस ऑन दिस ओनली, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो एक्स वाई आपको नजर आ रहा है, दिस इज द मिरर, ऑलराइट, एक्स वाई मिरर को ऐसे रख दिया गया है, ऑलराइट। यहाँ पर जो मिरर है, लेट मी यूज माई पेन, वेयर इज दैट, ऑलराइट। तो सी देखो यहाँ पर मिरर है एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई हमने मिरर रखा हुआ है। बैक साइड विच इज द बैक साइड ऑफ द मिरर, द पेंटेड वन, द ग्रे लाइन, जो ग्रे लाइन आपको दिख रही है दैट इज द प्रिंटेड वन, ठीक है। तो मतलब दैट इज नॉट द प्रिंटेड, अ पेंटेड वन, तो आप उसको बैक साइड मान सकते हैं, ऑलराइट। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, मतलब मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, दैट इज अ पॉइंट, ठीक है, ये रहा वो पॉइंट। अब क्या होगा, उस पॉइंट से जाती हुई जो लाइट रेज है, मतलब उस पॉइंट से लाइट रेज जाएंगी, ठीक है, एंड वो लाइट रेज मिरर से टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होंगी, डेफिनेट सी बात है। तो देखो क्या हो रहा है, हमने 2 लाइट रेज को यहाँ पर फॉर्म किया है, भेजा है,
लाइट रेज को यूज़ किया है, ठीक है। 2 लाइट रेज हमने भेजी हैं। एक लाइट रे तो हमने कैसी भेजी है, बिल्कुल टूवर्ड्स द मिरर, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। कैसे, देखो एक लाइट रे जा रही है ओ से, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जा रही है, कूल, यू कैन सी नाउ बेटर, राइट। तो एक लाइट रे किस तरीके से जा रही है, टूवर्ड्स द मिरर, राइट, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द मिरर, दैट इज 90 डिग्री पे फॉल हो रही है। अब हमें ये बात पता है कि कोई लाइट रे अगर मिरर पे 90 डिग्री पे जाती है तो इट कम बैक्स टू द सेम पाथ, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, राइट। तो वो यहीं से वापस चली जाएगी, राइट। सेकेंड जो हमने लाइट रे भेजी है वो कैसे भेजी है, विद सम एंगल्स। तो हमने क्या किया है, इस तरीके से लाइट रे को भेजा है कि वो एंगल आई फॉर्म कर रही है एट पॉइंट बी, ठीक है, एंड देन इट गोज रिफ्लेक्टेड बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो दिस आई एंड दिस आर आर इक्वल टू ईच अदर। तो इस तरीके से उसने एंगल को फॉलो किया है, रूल्स को फॉलो किया है, ठीक है। तो हमने मेनली 2 लाइट रे भेजी है, एक कौन सी, एक जो परपेंडिकुलर है मिरर के, ठीक है, तो दिस ओ ए, ठीक है। सेकेंड लाइट रे हमने भेजी है किसी एंगल पे, एनी एंगल, इट कैन बी एनी एंगल, ठीक है। तो हमने O से B तक लाइट रे को भेजा है, एंगल I फॉर्म हो रहा है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे गोज टूवर्ड्स द C, ठीक है। अब हमारा मेन काम क्या है, हमें ये 2 लाइट रेज मिल गई, हमने लॉज फॉलो करवा दिए। मेन काम यहाँ पे क्या है, मेन काम है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, मतलब ये जो लाइट रेज हैं जो कि मिरर से टकरा के वापस जा रही हैं, लेट्स एक्सटेंड दैम इनटू द बैक साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जब लाइट रे वापस जा रही थी तो वो वापस जा रही है, तो सबको कैसे लगेगा, मिरर से आएगी, राइट, सबको ऐसा ही तो लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, हमने इसे एक्सटेंड किया एंड वी रीच अप टू द आई पॉइंट। उसके बाद ये जो सेकेंड वाली रे थी जो बी सी की तरफ जा रही थी, राइट, तो वहां से भी हमने क्या किया, अब सब लोग मान लो सी की जगह पे कोई अगर आंख होगी, लेट्स से समवन इज सीइंग थ्रू द पॉइंट सी, अगर सी पॉइंट पे कोई देख रहा होगा तो उसे तो ऐसा ही लगेगा ना कि भाई बी पॉइंट से लाइट आ रही है, डेफिनेट सी बात है, उसको तो सीधे ऐसे आते हुए दिखेगी ना, दैट इज द मेन थिंग, उसे लगेगा कि मिरर के अंदर से आ रही है। सो लेट्स एक्सटेंड दैट इनटू बैक साइड ऑफ द मिरर। हमने बी को पीछे की तरफ जो है मिलाने की कोशिश करी, हम पीछे की तरफ लेके गए एंड एट अ पॉइंट जहां पर ये वाली लाइट रे फर्स्ट 190 डिग्री वाली और किसी एंगल वाली जो लाइट रे है बैक साइड में आई पॉइंट पे मिल रही है, दिस आई पॉइंट इज एक्चुअली द इमेज। यहाँ पर इमेज दिखाई देगी बिकॉज यहाँ से ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से लाइट रेज आर कमिंग आउट फ्रॉम द मिरर, दिस इज द पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर द लाइट रेज आर अपीयर टू कम, अपीयर टू डाइवर्ज। यू कैन सी हियर, एक लाइट रे ऐसे जा रही है, एक लाइट रे ऐसे जा रही है, नाउ यू कैन सी दे विल नेवर एवर मीट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, right, they will never meet, that means the image is the virtual one, it is not real, right, that's why the light rays appear to diverge from a point behind the mirror, I mean this point is behind the mirror obviously, but the light rays are coming from that point, ऐसा लगेगा सबको, ठीक है। तो that eye is the image of the object, alright, that's how we make up all the alright, that's how we make up all the images। ये तो पॉइंट का था, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, हाउ यू आर गोइंग टू मेक दैट वर्क, ठीक है। ये कुछ होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या किया है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है एंड व्हाट इज गोइंग ऑन, यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट, हमने सिर्फ क्या किया है, टॉप और बॉटम का ही लिया है, पॉइंट्स को कंसीडर किया है, बीच के सारे पॉइंट्स अपना अपना खुद से इमेज बना लेंगे, ठीक है। हमने फोकस किस पे किया है, सिर्फ 2 पॉइंट्स पे किया, टॉप एंड द बॉटम वन। तो देखो बॉटम वाले पॉइंट से एक लाइट रे जा रही है बिल्कुल 90 डिग्री पे, इट विल रिटर्न बैक, और एक जा रही है किसी एक एंगल पे एंड इट विल रिफ्लेक्टेड टू द आई, ऑलराइट। अब देखो टॉप वाले पॉइंट से अ लाइट इज गोइंग लाइक दैट, ठीक है, एन एंगल एंड इट विल गोज इनटू द आई। तो एज यू कैन सी हियर, दोनों लाइट रेज जो जा रही हैं, टॉप और बॉटम दोनों लाइट रेज जो जा रही हैं, कैन यू सी कि भाई सबको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, राइट। इस आई को कैसा नजर आएगा कि वहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, एंड दैट्स व्हाई ये जो आई है ये इस वर्चुअल इमेज को देख पाएगी,
ऑलराइट, दैट इज द मेन थिंग कि हमको ऐसा लगता है कि लाइट बिहाइंड द मिरर आ रही है, एक्चुअली में इट इज नॉट कमिंग बिहाइंड द मिरर, एक्चुअली दीज आर द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज विच fall on the mirror and gets reflected. All right, that is the main thing. तो आप इसका डायग्राम तो मत बनाइए, इसका डायग्राम मत बनाइए. लेट्स इसका जो फॉर्मेशन है, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन है, ये एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हम एक अलग वे में देखते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम जो है प्रूव भी करेंगे. तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑलपिन्स का या फिर ऑलपिन जैसे कोई चीज़ का हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, दिस वन, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, मेन काम यहाँ पे क्या किया है, वी हैव टेकन दिस ऑब्जेक्ट ए ओ, दिस इज एन एरो, अ स्ट्रेट एरो, ठीक है, वर्टिकल एरो है जो कि यू कैन से हमारा जो हॉरिजॉन्टल है उससे वर्टिकल है, राइट. तो यू कैन से दिस ए ओ ऑब्जेक्ट, इस ए ओ ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट ले लिया है, अब हमें इसका इमेज बनाना है, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दी एंगल्स एंड वी विल बी प्रूविंग दैट टू. तो जो दो चीज़ें हम लोग को एक्चुअली में प्रूव करनी है, वी विल बी डूइंग दैट. सो देखो यहाँ पर मेन चीज़ हमने क्या किया हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट ए ओ, राइट, इमेज मिल रही है ए डैश आई, ठीक है, ये इमेज मिल रही है हमें, राइट. तो यहाँ से जाते हुए कुछ इमेजेस, यहाँ से जाते हुए कुछ लाइट रेज होंगी जो यहाँ से ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ से आ रही हैं, इमेज से आ रही हैं, राइट. तो मेन यहाँ पे हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस किए हैं, वी हैव मेक सम लाइट रेज, ठीक है, वी हैव कंस्ट्रक्टेड दैम. सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं, लेट मी, ठीक है, अब हम देखते हैं वर्चुअल इमेज. तो ये है इमेज फॉर्मेशन ऑफ द एक्सटेंडेड वन. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड प्रूव द डिस्टेंसेस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स इज एक्चुअली सेम डिस्टेंसेस, राइट. तो बट बिफोर दैट मेक श्योर यू नोट दिस डाउन, यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन है, मेक श्योर यू मेक द डायग्राम एंड यू नोट दिस इंफॉर्मेशन डाउन, एंड देन वी विल बी प्रूविंग द डिस्टेंस इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर इक्वल. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव हियर. ऑलराइट, सो मेक श्योर यू नोट देम डाउन राइट नाउ. ऑलराइट, अब आज जब आपने नोट कर लिया है इन सब चीज़ों को, तो अब हम क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. सब अपनी कॉपी में इस डायग्राम को डेफिनेटली बना लिया है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इसी डायग्राम की हेल्प से और थोड़े बहुत मैथमेटिकल टर्म्स से जो हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़े हैं 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे, राइट, उनको यूज़ करते हुए वी विल बी मेकिंग द इमेज, ठीक है, एंड वी विल बी प्रूविंग द थिंग्स. So this is we need to prove, we are going to prove the distance of object from mirror is equal to the distance of image from the mirror. Alright, तो mirror से जितना दूर object है उसी mirror से उतना दूर ही image भी बनेगा. We are going to prove that, ठीक है. तो देखो यहाँ पर हम दो triangles ले रहे हैं, we have made the diagram, कैसे बनाया है वो देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो. ए पॉइंट से दो लाइट रेज जा रही हैं, ठीक है, ए पॉइंट से दो लाइट रेज जा रही हैं, एक जा रही है 90 डिग्री टू द मिरर, ऑलराइट, और एक जा रही है विद सम एंगल आई हियर, राइट. उसके बाद देखो ये वाली जो लाइन थी जो कि 90 डिग्री थी वो तो बैक ऐसे ही चले जाएगी, राइट, वो तो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी. लेकिन जो लाइट रे थी ए बी, ऑलराइट, तो ये ए बी जो लाइट रे थी वो कैसे जाएगी, विद सम एंगल इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट लाइक दिस, ठीक है. तो इट वुड बी बी डी, दैट वुड बी द रिफ्लेक्टेड वन, ठीक है. ये दोनों एंगल सेम टू सेम. ऑल्सो ओ पॉइंट से हमने क्या किया है, 90 डिग्री पे एक लाइट रे भेजी थी जो कि वापस आ गई है, ठीक है. इनको जब हम एक्सटेंड करेंगे बैक साइड में, सो वी गेट फर्स्ट वाली जो 90 डिग्री वाली थी जो ए से भेजी थी उसको हम बैक साइड लेकर जाएंगे, वी गेट ए डैश, ठीक है. फिर अगेन जो किसी एंगल पे भेजी थी उसको जो बैक साइड लेकर जाएंगे रिफ्लेक्टेड लाइट रे को,
बैक साइड लेकर जाएंगे, वी विल बी गेटिंग ए डैश, ठीक है। उसके बाद जो बचा ओ, तो ये 90 डिग्री है, वी विल बी गेटिंग दैट इट स्ट्रेट एंड वी आर गोइंग टू गेट दैट इमेज ए डैश आई एज द इमेज, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं दो ट्राइंगल्स में, सो वी आर गोइंग टू राइट इन ट्राइंगल, हमने 2 ट्राइंगल्स लिए हैं ए सी बी और ए डैश सी बी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए डैश सी बी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स हम लोगों ने लिए हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये बात तो पक्का हो गया है ना कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, ये बात तो हमें पता चल गया है। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री है तो इक्वल एंगल है, हमें बात पता चल गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट आप देखो क्या ये वाला जो एंगल है सी ए बी, यानी कि ये जो एंगल आई है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो इस सामने वाले एंगल आर के इक्वल है। कैसे इक्वल है, लेट मी टेल यू दैट। देखो, जब ये लाइट रे कहाँ से गई, ए टू बी गई, ए टू बी गई, आई एंगल फॉर्म किया, फिर बी टू डी गई तो आर एंगल फॉर्म किया। ये बात हमें पता है, आई इज इक्वल्स टू आर, सही बात है कि नहीं बात है ना। अब देखो, जब हमने इनको इस तरीके से देखा, जब हम बैक साइड इनको लेकर गए, एज यू कैन सी द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दैट आर लाइक दिस, ये वाला एंगल आर एंड दीज एंगल आर, जब 2 स्ट्रेट लाइन रेज लाइट रेज या फिर कोई भी सिंपल लाइंस जब क्रॉस करती हैं, सो द एंगल्स अपोजिट जो होते हैं दोज आर इक्वल एंड दोज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो आर एंड आर दोज आर सेम, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, देखो z फॉर्म हो रहा है, इन्वर्ट z हो रहा है, तो r और r, दैट्स व्हाई दिस r एंड दिस I are going to equal. This is just a mathematical terms, all right. So this is going to help us a lot. So देखो, angle CAB is equals to angle CA dash B, ठीक है, क्योंकि हमें पता है I is equals to R, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं since I is equals to R, तो क्योंकि angle of incidence is equal to angle of reflection and that's why we are going to get those angles equal to each other. अब देखो ध्यान से, अगर 2 ट्राइंगल्स हैं, उन दोनों के दो एंगल्स अगर सेम हो गए तो तीसरा भी तो सेम होगा, ये बात तो पक्की है ना, ये तीसरा तो सेम होना ही होना है, राइट, दैट इज द रूल एक्चुअली। तो इसकी वजह से, क्योंकि ये I इस R के बराबर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर है, तो बचा जो एक एंगल है, ये B वाला एंगल जो है, वो भी तो इक्वल होंगे आपस में, राइट। सो वी कैन गेट हियर, हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर एंगल ABC, ठीक है, ABC, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एंगल A dash BC, A dash BC. So these both are actually equal to each other. अब तुम यहाँ से देख सकते हो कि भाई ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल टू ईच अदर हो गए हैं, ऑलराइट। अब एक बात बताओ, 3 एंगल्स तो हमारे सेम हो गए एंड इन दोनों ट्राइंगल्स में दिस वन ACB और A डैश CB, इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आर्म जो है वो BC है कि नहीं है, ऑब्वियसली। सो हम लोग लिखने वाले हैं BC इज द कॉमन आर्म, अब यहाँ पर हमें एक बात पता चल चुकी है, क्या 90 डिग्री आपस में इक्वल arm and then those angles are equal, so this is the criteria known as the ASA, angle side angle congruency criteria, right। on this basis we can say that कि ये दोनों angles आपस में कैसे हैं, congruent हैं, ठीक है। तो हम लिखने वाले हैं by ASA congruency rule, triangle ACB
is congruent to triangle A dash C B. अब ये दोनों सेम टू सेम एंगल्स हो गए हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो AC है वो A डैश C के बराबर होगा, राइट? क्योंकि अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं ना दोनों ट्राइंगल्स, तो ये जो AC है दैट इज इक्वल टू A डैश C. ऑलराइट, सो वी कैन से दैट thus AC is equals to A dash C. तो इसका मतलब हमने ये चीज प्रूव कर दी है दैट कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. सो बेसिकली वी हैव प्रूव दैट. ठीक है, फटाफट से इसे नोट करो, उसके बाद हम एक और चीज प्रूव करेंगे. ऑलराइट, चलो अभी हम एक और चीज प्रूव करते हैं, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जितने साइज के हैं हमारी इमेज भी उतने साइज की होती है? ये चीज़ हमें दिखाई तो देती है, राइट? लेकिन अब हम उसको टर्म्स में कैसे प्रूव करेंगे? लेट्स सी दैट. ठीक है, हम उनको प्रूव करेंगे, तो हम यहाँ पे चलते हैं आगे. ठीक है, एंड लेट्स प्रूव दिस, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज. राइट, तो यहाँ पर इस बार हम क्या कर रहे हैं? दो ट्राइंगल्स फिर से ले रहे हैं. कौन कौन सा ट्राइंगल? OAB, दिस वन ट्राइंगल, एंड IA'B, ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, इन दोनों को ले रहे हैं. सो आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल A'IB. ठीक है, AOB एंड A'IB, ये दो ट्राइंगल्स हम लोगों ने लिए हैं. अब हमें ये बात तो पता है कि भाई AOB एंगल 90 डिग्री है और A'IB ये वाला एंगल 90 डिग्री है, राइट? सो वी कैन से दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल A'IB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. दोनों 90 डिग्री के इक्वल है. ठीक है, उसके अलावा जो हमने पहले प्रूव किया था I इज इक्वल्स टू R, वी नो दैट. सो वी कैन से OBA and this IBA dash, this I is equals to this R, right? तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. So we can say that ABO, right? ABO is equals to angle A'BI. ठीक है, क्यों? क्योंकि I इज इक्वल्स टू R है, इसलिए. ऑलराइट, अब एक और बात देखो, क्योंकि अब दो एंगल्स हम लोगों ने इक्वल प्रूव कर दिए, तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाता है, राइट? तो वो एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा. कौन सा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा? एंगल BAO विल बी इक्वल टू एंगल BA'I. ठीक है, देखो, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल I है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी इसी के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये R है, दोनों बराबर है. सो थर्ड एंगल वुड ऑल्सो बी इक्वल टू द अदर टू. ठीक है, अदर जैसे बाकी के दो इक्वल हैं वैसे ही थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा. अब यहाँ पे हमें तीनों एंगल्स इक्वल मिल चुके हैं और हमें ये बात भी पता है क्योंकि देखो,
ये जो ट्राइंगल था, हमने पिछली बार जो ट्राइंगल लिया था ACB, राइट, ये वाला जो ट्राइंगल हमने लिया था और ये वाला जो ट्राइंगल था वो हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रे है AB, ये जो AB है दिस इज इक्वल टू A-B, ये बात तो पहले से पता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सिंस AB इज इक्वल्स टू A-B, सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑलराइट, एंगल साइड एंगल कैसे हुआ, एंगल साइड एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल बराबर है एक दूसरे के, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करके हमने बोल दिया है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हमने लिए हैं AOB और हमने जो लिया है ट्रायंगल A-IB, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और जिसकी वजह से नाउ वी कैन प्रूव दैट AO इज इक्वल्स टू A-I, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, दैट मीन्स दोनों इक्वल होंगे ही होंगे, ऑलराइट। सो वी कैन से दैट AO इज इक्वल्स टू A-I। सो वी हैव प्रूव कि भाई इमेजेस का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा जब जब प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें प्रूव करी, एक तो डिस्टेंस सेम होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है, साइज है, वो सेम होगा, राइट। ऑब्जेक्ट एंड इमेज का साइज सेम होगा, दैट इज व्हाट वी हैव प्रूवन, राइट। फटाफट से इसे नोट करें एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे और हम लोग अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। तो देखो कैसी कैसी इमेज बनती है, पहले तो हमें पता कर चुका है कि सुबह हम जो अपने प्लेन मिरर में इमेज देखते हैं दैट इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। कैसी है, वर्चुअल है, क्योंकि ऐसा लगता है मिरर के पीछे से लाइट रेज बाहर आ रही हैं, राइट, दैट्स व्हाई दिस इज द वर्चुअल वन। सेकेंड देखो इरेक्ट, इरेक्ट माने सीधी अपराइट खड़ी हुई है, सिर ऊपर पाँव नीचे, जस्ट लाइक अस, राइट, दैट मीन्स इरेक्ट भी होता है। साइज सेम होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा। नेक्स्ट आप देखो सेम डिस्टेंस, जितना दूर ऑब्जेक्ट खड़ी होगी मिरर से उतना ही दूर इमेज भी होगी मिरर से, राइट। नेक्स्ट देखो जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब मैं खड़ी हूँ, ठीक है, मेरे सामने मेरी इमेज होगी, सो मेरा राइट हैंड वुड बी द लेफ्ट हैंड ऑफ दैट इमेज, राइट। दैट्स व्हाई ये जो लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन है दैट इज द वर्चुअल, यू कैन से द लेटरली इन्वर्टेड, राइट। ये देखो जैसे इस पर्सन ने, जो ये वाला पर्सन है, ठीक है, दोनों कितना सेम टू सेम लग रहे हैं, जैसे ये बिल्कुल यू नो जैसे जैसे सेम थिंग है, बट दिस इज द इमेज, वर्चुअल इमेज, एंड दिस इज द मैन, एक्चुअल मैन, ऑलराइट। सो यू कैन सी हियर वो कैसे कर रहा है, ये वाला हैंड आगे लेके आ रहा है, मतलब जो पर्सन है वो अपना लेफ्ट हैंड आगे लेके आ रहा है, बट सी द इमेज, इमेज को देखो, इमेज में कैसा लग रहा है, जैसे वो अपना राइट हैंड आगे लेके आ रहा है, राइट। तो you can see this right and the left confusion is actually the laterally inversion, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं पांचों चीजें हमें पता चल गई, these are the characteristics of the image formed by the plane mirror, make sure you note them down, short form में इनको नोट कर लो फटाफट से। ऑलराइट, ये सारे नोट कर लिए ना। अब हम पढ़ते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। सो बेसिकली ये जो एक्सचेंज होता है लाइट का राइट का लेफ्ट एंड लेफ्ट का राइट, ये एक्सचेंज इज एक्चुअली द लेटरली इन्वर्जन, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, जैसे हमने ये P लिखा है ना, ये P लिखा है, बट इसका इमेज वुड बी लाइक दिस, जो लेफ्ट होगा P का वो राइट बन जाएगा इमेज में, राइट, अपोजिट अपोजिट हो जाएगा। तो दैट इज द मेन थिंग। और इसका कॉज क्या होता है, व्हाई लेटरल इन्वर्जन अकर्स एक्चुअली, वो इसलिए बिकॉज देखो
मैं खड़ी हूँ, राइट, तो मेरी एज इट इज यही इमेज सामने आती है, राइट, जैसे इस पर्सन की आई है एज इट इज सामने आई है, राइट, तो जो हाथ इसका आगे आया है, ठीक है, उस हाथ का एज इट इज इमेज भी आगे आया है। एज यू कैन सी है, जो पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट्स मिरर के पास होंगे वो पहले बनेंगे, उनका इमेज भी पहले होगा, बिकॉज सेम डिस्टेंसेस वाला केस होता है, ठीक है, तुम्हारा जितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है मिरर से उतना ही इमेज का भी होगा। सो यू कैन सी हियर, इस हाथ का जो डिस्टेंस है मिरर से बिल्कुल सेम टू सेम उसकी इमेज का भी होगा, तो दैट इमेज वुड लुक क्लोजर, राइट, पास दिखाई देगी ना वो इस मिरर के बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस पे, बट इसकी बॉडी देखो, बॉडी थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो दैट जो इमेज बनेगी वो एज इट इज बनेगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऐसा लगेगा जैसे मैं हूँ और किसी ने उसको टर्न करके मेरे ही सामने खड़ा कर दिया, लाइक मी, टोटल मी, एक पूरा का पूरा कॉपी मी, राइट, इन फ्रंट ऑफ मी, एंड दैट्स व्हाई दिस लेटरली इन्वर्जन अकर्स, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जो पॉइंट्स हमारी बॉडी के या किसी भी बॉडी के जो पॉइंट्स होते हैं जो पास होते हैं मिरर के वो पहले बनते हैं, क्योंकि इक्वलिटी है, उनको जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम रखने हैं हर एक पॉइंट के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज पॉइंट्स एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक को सेम रखने के लिए लेटरली इन्वर्जन अकर होता है। और राइट, तो ऐसा लगता है कि ये जो बॉडी है उसको एज इट इज पलट के खड़ा कर दिया है। All right, and that's why this right and left confusion occurs here. All right, make sure you note that. चलो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस। हैव यू एवर सीन थिंग्स लाइक दिस? नाउ देखो यहाँ पर ये एक स्मॉल टॉय रखा हुआ है, ठीक है, कैट है ये और टॉय है ये, ठीक है, ये दो मिरर को किन्हीं एंगल पे रखा हुआ है एंड देन उसके बीच में हमने क्या किया है, इस कैट को रखा है। इमेजेस कितनी मिल रही हैं वो बताओ मुझे। 1 2 3 4, so 4 images are created, right? तो ये जो 4 images हैं and even 3 images also form, right? ये जो condition है कि भाई 2 images form होंगी, 3 images form होंगी, how you are going to get that? So मैं आपको बताती हूँ उसका formula, ठीक है। यहाँ पर देखो नंबर 1, तो मेन थिंग जो हमने अज्यूम किया है वो क्या अज्यूम किया है, दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वही लिख देते हैं, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स, ठीक है, दो मिरर्स के बीच में थीटा एंगल है। अब हमें कैसे पता करना है, सो लेट्स चेक इट आउट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है, जो भी एंगल होगा हमने ये किया। इफ दैट नंबर कम्स आउट टू बी इवन, अगर ये जो नंबर आ रहा है वो अगर इवन आ रहा है, देन द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस का 1, दिस वुड बी द नंबर ऑफ इमेजेस। ऑलराइट, ये हमें होगा तब होगा जब दिस 360 डिग्री बाय थीटा इज इवन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, ऑड होगा तो क्या होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल्स टू, अगर ऑड आ जाए, अब इस ऑड के भी दो कंडीशंस हैं, ठीक है, इस ऑड के भी दो कंडीशंस हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट रखी है क्या वो बिल्कुल बीच में मिडिल में रखी हुई है, एंगल बाइसेक्टर पे रखी हुई है। तो यहां से आएंगे दो केसेस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखी हुई है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल बीचों बीच रखी हुई है, ऐसा नहीं है कि एक मिरर की तरफ ज़्यादा जो है डिस्टेंस है और एक मिरर की तरफ कम डिस्टेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये जो कैट है, दिस इज कैप्ट ऑन द एंगल बाइसेक्टर, दैट मीन्स ये जो एंगल बन रहा है उसकी ठीक बीचों बीच रखी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये इस मिरर के ज़्यादा पास है या फिर उस मिरर के ज़्यादा पास है ना, ऐसा नहीं है। तो दैट इज द केस। अगर यहाँ पर ऑड आ रहा है नंबर, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा ऑड आ रहा है एंड जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर रखी हुई है, तो यहाँ पर एक्चुअली में आपको जो नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे
वो कितने मिलेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस का 1, ठीक है। और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखी होगी तो क्या होगा, लेट्स से इस कैट को हम एक मिरर के ज़्यादा पास कर देंगे, दूसरे मिरर से ज़्यादा दूरी बढ़ जाएगी, राइट। तब जो नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी तब हमें कितनी मिलेगी, एन इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है। इनको अच्छे से नोट करो ये फटाफट, ठीक है। मेक श्योर दीज आर द डिफरेंट थिंग, इनको फटाफट से नोट करो एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम मोर केसेस। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने दो कंडीशन देखी है, ठीक है। मैं आपको वापस से बता दूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इवन कंडीशन, ऑड कंडीशन। अगर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा कम्स इवन, देन द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी द नंबर -1, ऑलराइट। अगर ऑड आता है तो ऑड में तुम्हें ये और चेक करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखी है या नहीं रखी है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर पे अगर रखी होगी तो हम क्या करने वाले हैं, -1 वाला ऑप्शन यूज करने वाले हैं। एंड जब वो नहीं रखी होगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब तो पता है ना तुम लोगों को, मतलब आधा आधा बांट रहा है एंगल को, ऑलराइट, दैट इज द मतलब मिडिल में बीचों बीच वो बैठ गई है जैसे। थर्ड कंडीशन देखो, अगर क्या हो 360 डिवाइडेड बाय थीटा कम्स टू बी अ फ्रैक्शन या फिर डेसिमल, ठीक है। मान लो जैसे तुम्हारा अगर कोई नंबर आ रहा है 1.6, 2.5, 3.4, ठीक है, या फिर लेट्स से कुछ अपॉन में आ रहा है 1/2, कुछ ऐसे नंबर्स अगर आपको आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपका ऐसा फ्रैक्शन कोई आ रहा है, देन इंटीजर वुड बी द नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। देन integer will be the number of images। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बताऊं, लेट्स से आपका नंबर आ रहा है 2.6, ठीक है। लेट्स से 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा कम्स आउट टू बी 2.6, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी 2, सिर्फ आगे का पार्ट मतलब डेसिमल के पीछे का पार्ट छोड़ दो, ठीक है, वो जो है नंबर ऑफ इमेजेस होगा, ठीक है। अब इसे फटाफट नोट करो एंड देन वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, ऑलराइट, जल्दी से। ऑलराइट, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं। अ क्लॉक व्हेन व्यूड इन अ प्लेन मिरर, ठीक है, शोज 4:30, व्हाट इज द करेक्ट टाइम। देखो यहाँ पे तो मैं क्या दिया है, इमेज दिया है, ठीक है, इमेज दिया है। देखो व्हेन व्यूड इन अ प्लेन मिरर बोला गया है, तो व्हेन व्यूड का मतलब दिस इज इमेज, ठीक है। तो देखो लेट्स सी, दिस इज द क्लॉक, दिस इज द इमेज क्लॉक, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज क्लॉक। इमेज क्लॉक के अंदर, इमेज क्लॉक देखो जैसे यहाँ पे है 12, ठीक है, यहाँ पे है 3, 6, 9, तो तुम मुझे बताओ इमेज में कैसा नज़र आएगा, 12 नज़र आएगा, यहाँ 3 नज़र आएगा, यहाँ पे 9 नज़र आएगा, यहाँ पे 6 नज़र आएगा, ठीक है। हालांकि ये भी इन्वर्टेड होंगे, मतलब 6 भी आपको कुछ ऐसा नहीं ऐसा नज़र आएगा, राइट, डेफिनेट सी बात है, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे कर रही हूँ, ऑलराइट, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो देखो दिस इज द इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब देखो इमेज में क्या बोला जा रहा है कि 4:30 बज रहे हैं, 4:30 यानी कि समवट यहाँ पर कहीं पे है ना, जैसे यहाँ पे क्या होता है 6, 7, 8, तो देखो यहाँ तो बज गया 3, 4, 30, लाइक समवट हेयर। समवट हेयर का जस्ट इन्वर्टेड यहाँ पे मुझे कहाँ मिलेगा, ठीक है, समवट हेयर जो ब्लैक मार्क है, ठीक है। अब मैं उसके लिए पहले यहाँ पे भी जो है लिख देती हूँ, दिस वुड बी 7, दिस वुड बी 8, ठीक है। अब देखते हैं ये कहाँ पे बज रहा है, 4:30 बज रहा है ना यहाँ पर, तो मतलब जो इसके यू कैन से मिनट हैंड एंड आवर हैंड होंगे वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होंगे, राइट।
अगर तुम यहाँ पे देखो तो इट वुड बी मार्क इज शोइंग यू हेयर, राइट। तो यहाँ देखो 430 और जो असली नंबर हमें यहाँ दिख रहा है व्हाट इज दैट, दैट इज एक्चुअली 7 and 8 के हाफ में, तो इट वुड बी 7:30, राइट। सो करेक्ट टाइम वुड बी द 7:30, ऑलराइट, द करेक्ट टाइम वुड बी 7:30। हमने कैसे पता किया, हमने नंबर्स के बेसिस पे नहीं बोला, हमने यहाँ पे बोला है जहाँ पर एक्चुअली में मिनट हैंड और आवर हैंड पॉइंट आउट कर रही होंगी, ऑलराइट। तो वो जहाँ पे भी पॉइंट आउट करेंगी वो इम्पॉर्टेंट केस है, क्योंकि इन्होंने हमें बता दिया कि भाई वो 4:30 पे पॉइंट आउट कर रही है। 4:30 आपको दिखा रही है कि भाई 4:30 बज रहा है उस वक्त, ठीक है। नंबर्स पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, सिर्फ इस पे देख रहे हैं 4:30। अब हमें पता है कि 4:30 पूरे क्लॉक में कहाँ लाई करता है, राइट। हमें पता है कि आफ्टर वो इधर आता है, यहाँ कहीं 4:30 एग्जिस्ट करता है, राइट। अगर हम इसे ऑब्जेक्ट में देखेंगे, असली टाइम में देखेंगे, तो दैट मीन्स वो हमें वहाँ कहीं मिलेगा साइन, और हमें पता चल जाएगा विद द नंबर्स दैट इट इज 7:30 एक्चुअली, ऑलराइट। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट टू प्ले विद द मिरर्स एंड देयर इमेजेस, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग फटाफट से कर लेते हैं, इसके ऊपर तो मैंने ये बना दिया, कोई बात नहीं। जो है मैं क्या कर देती हूँ, इसे हटा देती हूँ, नहीं छोड़ देते, देख कोई बात नहीं, सभी बच्चे क्वेश्चन तो देख पा रहे हैं ना। हाउ मैनी, मैं बता देती हूँ जो नहीं देख पा रहे, हाउ मैनी नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्जर्वेबल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर। तो देखो जब कभी भी प्लेन मिरर्स, ठीक है, उनको हमने क्या किया है, इस तरीके से पैरेलल रख दिया है, तो कितनी इमेजेस आपको मिलेंगी, देयर इज नो एनी एंगल। हमने तो एंगल डिस्कस किया था, यहाँ तो कोई एंगल नहीं है। एक्चुअली में जब हम 2 प्लेन मिरर्स को पैरेलल रख देते हैं, सो वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे भैया इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, ऑलराइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन is, wow, an object is kept between 2 plane mirrors if the angle between the mirrors is 30 degree, how many images will be formed। अब हमें यहाँ जो अपनी इंफॉर्मेशन हमने लिया था टेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि 2 मिरर्स के बीच में हम लोगों ने क्या किया है, ऑब्जेक्ट रखा है एंड द एंगल इज 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पे थीटा कितना है, लेट मी जस्ट डू दैट अगेन, थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, ये हमको गिवन किया हुआ है, ठीक है। दिस इज द गिवन पार्ट, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री इज द गिवन पार्ट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें तो मेन कैलकुलेशन क्या देखना है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय द 30 डिग्री, कैंसिल आउट कर देते हैं, 1 2 12 आ रहा है, 12 इज द इवन नंबर, राइट, 12 आ रहा है, 12 इज द इवन नंबर। हाउ वी आर गोइंग टू गेट द नंबर ऑफ इमेजेस, इट वुड बी 360 degree divided by 30 minus का 1, तो this number comes out to be 12 minus 1 is 11, so we are going to get 11 images। कितने इमेजेस मिलने वाली है, 11 इमेजेस मिलने वाले हैं, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस इन हर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एंड आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट। सो दैट इज इट इन दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you will remain notified for the upcoming videos।